साथे। Over to you. Thank you for the loudest round of applause I have ever received in my life. Thank you. Before we call the master on stage, I'm sure many of you want to ask me why I chose the title of my book when he's sitting out here. Yes, Sachin Tendulkar destroyed my entire generation. I also played under 15 cricket, under 19 cricket. Many of you did, right? I always say he made us look like genetic garbage. Because the day I scored 50 runs, he used to make 300. And when I came home, my parents didn't even congratulate me for what I did. But thankfully, I could imitate Sachin Tendulkar. I became his friend, and that opened the doors of the world of cricket. So he looks after comedians also. So round of applause for him as well. Before I call him on stage, I want to see the cricket quotient of this audience. आप लोग cricket ready हो? Rashtrapati Bhavan round of applause I need. Come on. So we'll start. I'll do one question here and one question here. ठीक है? हाथ रेस करके आपको आंसर देना है. मैं क्रिकेटर की एक नकल उतारूंगा. आपको बताना है ये कौन है क्रिकेटर. रेडी? Well done. 100 marks. Well done. Shabash. सूर्य कुमार यादव लेफ्टी है? कौन सा गेम देख रहे हो आप? युवराज सिंह is the right answer. Round of applause for him. Last one. थोड़ा मुश्किल करें या आसान कर देते हैं? Round of applause for all of you, ladies and gentlemen. मैं हमेशा कहता हूं कि एक जमाना था जो 70s 80s में क्रिकेट खेलते थे और क्रिकेट देखते थे कि सचिन तेंदुलकर आउट हो गए तो सब चैनल्स की टीआरपी 0 हो जाती थी और इसीलिए ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री पे मैंने काम किया. But ladies and gentlemen, he has inspired an entire generation. All of us started enjoying the game like him. And then we went on to play the game and then even make jokes on it. So 1983 through 2011, that was, I think, the journey of Indian cricket's growth. And he was somebody who drove that right from the 1989 part to till the time he retired for 24 long years. 100 hundreds, 35,000 runs. And after all this, he happens to be one of the finest human beings this country has seen. Ladies and gentlemen, for the master, Sachin Tendulkar. Sachin, a very, 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 very warm welcome to you here. मैं warm क्यों कहता हूँ क्योंकि हम दोनों मुंबई से आए हैं और दिल्ली की ठंड हमें -25 ऑलरेडी लगने लग गई है. But really, it's a pleasure to have you here. Beautiful auditorium, 350 acres of land. I know when people come from Mumbai, 5 square feet ज़्यादा भी हमको balcony अंदर ले लेते हैं. But this has been special. What a wonderful venue. I'm sure you have had a great time so far. First of all, good evening to everyone. And thank you so very much for this warm reception, warm welcome. It means a lot to me. यहाँ आके तो बहुत special feel कर रहा हूँ क्योंकि I've been to राष्ट्रपति भवन पहले काफी बार आया हूँ मगर पहली बार ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने मुझे उनका गेस्ट करके बुलाया तो मीन्स अ लॉट. पहली बार हम एक्सपीरियंसिंग यहाँ पे रहना और यहाँ की हॉस्पिटैलिटी वार्मथ जो मेरे आजू बाजू सारे लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है. आई रिमेम्बर दिस आफ्टरनून व्हेन आई वॉक्ड इन, जो कॉरिडोर में जब हम चल रहे थे और
सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स के पोर्ट्रेट्स लगे हुए, वो देखकर हम खड़े हो गए। उसी पैसेज से आपके लिए रूम की तरफ चलना एक अलग सा फीलिंग है। और इनफैक्ट हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने और एक नई इनिशिएटिव को और ज़्यादा पुश करने की कोशिश की है, विच इज अलाउइंग जनरल पब्लिक टू विजिट अमृत। तो आई थिंक, और मैंने सुना कि लाखों लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आई पर्सनली फील इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अभी हम यहाँ आ रहे थे जब इस इवेंट को, तो वी ड्रोव थ्रू द गोल्फ कोर्स, क्रिकेट फील्ड भी है, टेनिस कोर्ट्स है, पोलो भी है। तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो किसी भी अचीव के लिए बहुत, मगर जो यहाँ आकर मुझे खुशी हो रही है and to be able to interact with all of you makes me really happy. So thank you very much for having me. नेक्स्ट टाइम सर को हम क्रिकेट मैच के लिए बुलाना चाहेंगे। आर यू ओके विद दैट? बट हमने ये भी देखा कि यू हैड अ कॉन्वर्सेशन विद द ऑनरेबल प्रेसिडेंट राइट नाउ, सो कैन यू शेयर क्या डिस्कशंस हुई? This trip has been special क्योंकि जब अभी हम उधर को बैठ के बात कर रहे थे, ऑनरेबल प्रेसिडेंट मेड अस फील सो कंफर्टेबल। मेरे साथ वो अंजलि रोज ने सारा, तो हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की। I actually discussed about how it was to experience the hockey World Cup in भुवनेश्वर, और वहाँ पे हमने बात की हमारे दोस्त दिलीप तिर्की, जो जिनके साथ बैठ के मैंने वो मैच देखी, हॉकी की मैच, और काफी सारे एक स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हुए भी। तो मैं उन्हें सवाल करे जा रहा था, मैं जो मुझे दिख रहा है, और he's looking at it from a world class hockey player point of view. तो वो एक एक्सपीरियंस था, वो हमने डिस्कस किया। We like to mention earlier about the foundation also. यहाँ पे आपने जो मेंशन किया कि फाउंडेशन हमारा क्या काम करता है, we are basically helping underprivileged children across the country, mostly in rural parts of India, in three verticals, which is health, education and sport. तो इस बारे में भी बात हुई। भुवनेश्वर की मेरी जो पहली ट्रिप थी एज अ 13-year-old, उस बारे में हमने बात की। और हम जब वहाँ पे स्टेडियम के बाहर खड़े रह के यही सोच रहे थे कि एक दिन में स्टेडियम के अंदर जाके खेलना है। उस समय तो मिला नहीं था मौका खेलने का, मगर वो एक पहला एक्सपीरियंस था भुवनेश्वर जाकर उस ट्रिप का। तो वहाँ के खाने के बारे में भी बात की। I love food and I could discuss that with the Honorable President. So this is how comfortable I was made to feel. So I really appreciate it. Fantastic. So when you wanted to play in the stadium in Bhubaneswar, you were what, 10 years old? 12 years? हाँ, I was about 13. तो बाहर से मुझे याद है हम डॉर्मेटरीज में वहाँ पे रह रहे थे, और वहाँ 5 टीम्स थी, which is ईस्ट जोन, साउथ जोन, नॉर्थ जोन, सेंट्रल जोन और वेस्ट जोन, और 5 बड़े रूम्स थे। पूरी एक टीम एक कमरे में ठहरी हुई थी। तो वो एक एक्सपीरियंस अलग था, और हमारे सामने ही स्टेडियम था, मगर हम स्टेडियम के अंदर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि हमारे मैचेस थे बाहर वाले ग्राउंड्स पे। तो वहाँ का एक जो माहौल था, वो जो एक्सपीरियंस था, वहाँ के रिक्शा में ट्रैवल करना, और वो साइकिल वाले रिक्शा थे, मुझे अभी भी याद है। तो वहाँ से बाद में we ended up playing World Cup match with West Indies के खिलाफ, और इंटरनेशनल मैचेस में सारे मैचेस खेले। तो वो एक भुवनेश्वर की भी बहुत अच्छी रही हमारे लिए, क्योंकि वहाँ पे यहाँ डॉर्मेटरीज में हम एक बड़ा रूम शेयर करते थे 15 प्लेयर, वहाँ से स्टेडियम में अंदर जाना वो जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग। क्या बात है, फैंटास्टिक। Before I ask you some fun questions about one of my other favorite players,
you've always said, Sachin, that sports should be a very important subject in school. और हमारी भी बात हुई है कि ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आपको लाइफ लर्निंग सिखा सकता है, टीम वर्क, लीडरशिप. बट यू हैव सेड दैट इट शुड बी मैंडेटरी इन स्कूल, क्योंकि बहुत सारी चीजें स्पोर्ट्स ऐसे सिखाता है जो हमको बाकी के सब्जेक्ट्स नहीं सिखा सकते. व्हाट इज योर फिलॉसफी ऑन दैट? स्पोर्ट्स तो मैं पहले कहूँगा कि सभी को इक्वली ट्रीट करना. कोई भी स्पोर्ट है वो तुम्हारे रंग या तुम्हारा बैंक बैलेंस या कहाँ से आते हो, कौन से इंडिया के पास से आते हो, कभी ये सोचना है. एक बार जब अभी क्रिकेट स्पोर्ट में तो मैं कह सकता हूँ कि एक बार रोड क्रॉस करके जाते हो तो सभी के लिए इक्वल प्लेस है. अगर आप अच्छा करते हो तो ऑब्वियसली यूर टॉप ऑफ द वर्ल्ड, नहीं तो फिर वापस जाके कोशिश करते हो. और फिर इन अ टीम स्पोर्ट I think it is extremely important to understand each other, play together as a team. कई बार ऐसे होता है कि आप अच्छे फॉर्म में हो और कोई दूसरा अच्छे फॉर्म में नहीं है, तो आपको उसको संभल के आगे लेके जाना पड़ता है आपके साथ. कभी कभी आप अच्छे नहीं करते, कोई और खेल रहा होता है. तो इट इज अबाउट स्टिकिंग टुगेदर एज अ टीम थ्रू अप्स एंड डाउन्स. मैं कहूँगा कि मेरे लाइफ में मुझे स्पोर्ट ने काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई. मैं जब छोटा बच्चा था तो बहुत शरारती लड़का था. हर दिन मेरे घर में कंप्लेन आती थी. पेरेंट्स यूज्ड टू बी वाइस कि आज शाम को क्या है. वो काम करके आते थे, थके हुए रहते थे और हर शाम को कंप्लेन होती. फाइनली मेरे भाई ने डिसाइड किया कि ये जो समर हॉलीडेज है उसे हम क्रिकेट खेलने के लिए भेजते हैं शिवाजी पार्क में. जितनी मस्ती करनी है उधर वो मस्ती ग्राउंड पे करेगा, एटलीस्ट घर में कंप्लीट तो नहीं है. इस तरह से मेरा क्रिकेट शुरू हुआ. एंड फ्रॉम अ नॉटी किड टू अ फोकस किड हु वाज वांटिंग टू अचीव समथिंग इन लाइफ, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ क्रिकेट की वजह से. डिसिप्लिन लड़का हुआ था और जो हम कहते हैं कि एनर्जी को चैनलाइज करना, आई स्टार्टेड चैनलाइजिंग दैट एनर्जी. थोड़ी बहुत लाइफ में प्लानिंग शुरू हुई. अब तक प्लानिंग वगैरह कुछ ऐसे ही जो चल रहा है चलने दो. उसके बाद आई हैड दिस ड्रीम ऑफ प्लेइंग फॉर इंडिया. 83 में ऑब्वियसली व्हेन वी वन द वर्ल्ड कप वहां पे लगा था, मगर जब क्रिकेट शुरू हुआ तब पता लगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कौन से अलग अलग स्टेजेस से जाना पड़ता है. आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, आई स्टार्टेड प्लानिंग. बहुत बार ऐसे हुआ मेरा प्लान किया फिर भी जाके देयर वर ओकेजन्स वेयर आई फेल्ड. बट देन द स्पोर्ट taught me to get back on my feet again and compete in the fairest possible time. I think ये सारे लेसन जब आपके लाइफ में जनरली यूज करने लगते हो तो उसका बहुत फायदा होता है. एंड दैट्स समथिंग दैट आई पिक्ड वेरी वेरी अर्ली इन माय लाइफ. ऑब्वियसली एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन ये था कि फादर ऑलवेज टोल्ड मी दैट इट डजंट मैटर इफ यू फेल, all I expect from you is 100% effort and 100% preparation. Sure. So long as I did that, I was okay. So I would say कि ये छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखते हो तो बड़ा रिजल्ट जो होता है वो अपने आपको फॉलो करने लगता है. Absolutely. The ability to take loss is something that sport teaches you. Trigonometry cannot teach you that. करेक्ट है ना? साइन थीटा किसी के काम आया आज तक? नहीं, साइन थीटा एडमिशन के लिए काम आएगा. But sport is about partnership. हमने देखा है कि great tournaments are won because they are good batting partnerships, there are good bowling partnership. बुमराह भी अच्छा डालता है जब शामी उसके साथ होता है. And every time you notice India की success story या किसी भी profession की success story में partnerships की importance है. मैं आप before I ask you this question, run कभी complete होता है आप बता सकते हो? When does a run get complete? जब दूसरा बंदा भी दूसरे एंड पहुंचता है, राइट?
सो अगर सचिन तेंदुलकर ने 40,000 रन बनाए तो 20,000 रन सचिन तेंदुलकर के लिए कोई भागा है। और ये मत भूलना कि सचिन तेंदुलकर ने 24 साल में हजारों लोगों के लिए वो भागे हैं। तो हम सब एक दूसरे के लिए भाग रहे हैं और जो अच्छा भागेगा वो कंपटीशन जीतेगा। एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू सचिन, दैट व्हाट इज इट अबाउट पार्टनरशिप दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट? पार्टनरशिप में बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जो ट्रस्ट, एक दूसरे पे भरोसा करना। और अगर स्टोरी बताऊंगा, शायद आपने पहले सुनी होगी, कई बार ये स्टोरी भी नहीं होगी। अभी वो प्लेइंग टेस्ट मैच इन मोहाली अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और मैं और राहुल द्रविड़ हम दोनों बैटिंग कर रहे थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ क्रिस गेल्स बहुत अच्छी बॉलिंग थी, और वहां पे बॉल स्विंग हो रहा था, मगर नॉर्मल स्विंग नहीं चल रहा था, रिवर्स स्विंग हो रहा था। तो रिवर्स स्विंग जब बॉल होने लगता है तो आप नॉर्मली बॉल के शाइनी साइड को फोकस करने लगते हैं, पर कभी कभी सॉइल का कलर ऐसे हो जाता है कि ये ना कौन सी शाइनी साइड है और कौन सी साइड रफ साइड है वो नजर नहीं आती ठीक से, क्योंकि 22 यार्ड का एक डिस्टेंस होता है पिच का, प्लस बॉलर का रन अप और 20 यार्ड लगा लो तो वो काफी डिस्टेंस हो जाता है, ऑलमोस्ट 120-130 फीट आपसे दूर। इट इज क्वाइट अ डिस्टेंस टू पिक शाइनी साइड और रफ साइड। तो उसमें हमें बॉलर हर ओवर में 1-2 बार बीट करे जा रहा था। तो मैच वाज अ क्रिटिकल सिचुएशन, यू नो, वहां पे अगर हम विकेट खोते थे तो प्रॉब्लम हो सकती। तो मैंने राहुल को कहा कि राहुल एक दूसरे को ट्रस्ट करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे अगर शाइनी साइड नहीं दिख रही है तो एक दूसरे को बताएंगे। कहना था कि कैसे बताएंगे? मैंने कहा कि मैं देखता रहूंगा बॉलर की तरफ, और जैसे ही मैं मुझे पता लगेगा कि शाइन कौन सी तरफ है, मैं बैट उस हाथ में पकड़ूंगा। अगर इस हाथ में बैट है इसका मतलब बॉल इस तरफ जाएगा, अगर इस हाथ में बैट है तो बॉल अंदर की तरफ आएगा, तो तुम तैयार है। सडनली ओवर में 2-2 बॉल बीट हो रहे थे, वहां से ओवर में 2-2 चौके लगने लगे, और इसमें न्यूजीलैंड टीम को थोड़ा डाउट है, कह रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ है, भी बॉलर बीट कर रहा था और सडनली बॉलर के रिदम इतनी खराब नहीं हो सकती। तो शायद पॉइंट या कवर के फील्डर ने कुछ मैसेज भेजा, वो मैसेज हंसते 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 बॉलर की तरफ पहुंच, तो बॉलर ने क्या किया, क्रॉस सीम पकड़ी और बॉल डाला, और सामने क्या देखा कि मेरी तरफ आके मुझे क्रिस्टियन ने पूछा कि व्हाट हैव यू गॉट फॉर दिस, क्योंकि उसको पता चला कि मैं बैट से दिखा रहा हूँ राहुल। तो मैंने राहुल को पहले ही बोल के रखा था, जिस समय मुझे पता नहीं लगेगा मैं बैट बीच में पकड़ूंगा। तब तक मैंने तो लाइफ में देखा नहीं था, मगर that was possibly the only time Rahul Dravid was not watching the bowler, but मेरी तरफ देखे जा रहा था, बॉलर भाग रहा है मेरी तरफ देखे जा रहा था कि बैट कौन से हाथ में पकड़ी है। What a fantastic story. But Sachin, दिस इज अबाउट राहुल द्रविड़ whose mind is organized. वीरू के साथ कैसे करोगे? क्योंकि वीरेंद्र सहवाग हमारा दोस्त है, बहुत अलग उल्टा दिमाग जिसे हम कहते हैं। मुझे याद है एक बार श्रीलंका में रवि शास्त्री सहवाग के इंटरव्यू ले रहे थे, और सहवाग डरते थे क्योंकि बोले थे मुझे मैन ऑफ द मैच नहीं जीतना है क्योंकि अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। सो सहवाग को रवि शास्त्री ने सवाल पूछा, Sehwag, the ball was coming on to the match. What was your decision? How did you play that particular ball? सर ऐसी कोई बात नहीं है, बॉल बल्ले पे आ रही थी, मैंने मार दी बस। अब जो आप सहवाग को बोलोगे उसके उल्टा करेगा। नाउ आई वांट टू पुट यू इन अ स्पॉट सचिन, हाउ डिड यू मैनेज वीरेंद्र सहवाग, बिकॉज यू बैटेड अ लॉट टुगेदर? अच्छा मैनेज करके आपने सवाल पूछा है मुझे कि हाउ डू यू मैनेज सहवाग। सहवाग के साथ बैटिंग करना वो मैं कहूंगा कि नॉन स्ट्राइकर में से रोलर कोस्टर है शुरू में, क्योंकि वो अलग सोचता था। नॉर्मली जब बॉलर लास्ट के कुछ ओवर्स डाल रहा है, मैच खत्म होने वाली है,
तो बैट्समैन सोचता है कि यार लास्ट की कुछ बॉल है, मैं चुपचाप खेल के निकल जाऊँ, कल मारूंगा। तो वीरू का थिंकिंग था कि भाई कोई सोच नहीं रहा है, मैं मारूंगा तो भी मैं मार लूंगा पूरा बॉल। और जब नॉर्मली बैट्समैन को मारना होता तो वीरू और भी पीटता था। तो वीरू के पास एक ही फॉर्मूला था, मारते रहो। तो वीरू को स्लोली स्लोली जैसे टाइम बीतता गया तो आई अंडरस्टूड कि ये कैसे सोचता है। और बहुत बार मैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड से भी सोचता था कि मेरा वीरू क्या सोच रहा है अभी और ऑपोजिशन क्या सोच रही है। और मैं हंसता था कि मुझे पता था कि वीरू मारने वाला है और सबको लगता था अभी तो वीरू नहीं मार सकता। मुझे पता था कि पक्के 2 बाउंड्री 2 छक्के लगने वाले हैं। तो वीरू एक्चुअली टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका में खेल रहे और वीरू आउट हुआ, जल्दी आउट हुआ, जोर से उससे मारा और थर्ड मैन पे फील्डर लगाया हुआ था डेल्स ने, तो थर्ड मैन के हाथ में ही गया अनलकी। तो वीरू आके अंदर बैठा हुआ था, एकदम सोच रहा था। मैंने उसको थोड़ी देर उसको टाइम दिया। नॉर्मली बैट्समैन आउट होता है तो गुस्से में होता है, सोच रहा होता है, दिमाग काम नहीं कर रहा था बैट्समैन का। थोड़ा ठंडा होने के बाद मैंने वीरू के साथ में ऐसे बैठा, वीरू सेकंड इनिंग में जाके पहला बॉल छक्का देना उसको कवर के ऊपर से। क्या बात कर रहे हो पाजी यार, ऐसे नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है पहले मैं 3-4 ओवर जरा देख लूंगा उसको चुपचाप, फिर उसको दूंगा छक्का। मुझे एक्चुअली वही चाहिए था। मैं उसे कह रहा कि वीरू तू पहले 3-4 ओवर देख ले। तो उसने कह रहा था कि पाजी मैं मारूंगा उससे। तो जो मुझे चाहिए था वही मुझे मिला। तो what I'm trying to say is teamwork again, like you said. Teamwork is also about understanding your colleagues और उनसे उनका बेस्ट कैसे निकलना। क्या बात है। I think that becomes important and वीरू से मैं काफी सीनियर था तो जो भी मेरी बात होती थी वीरू के साथ, और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्रैक्टिस करते थे, ट्रेनिंग भी इकट्ठा करते थे जिम में जाके वगैरह सब। तो आई वुड से कि वीरू एक मेरा पार्टनर था प्रॉपर। ग्राउंड पे भी जब ओपन कर रहे थे इकट्ठा थे, शाम को भी खाना वगैरह खाते थे, बहुत बार हमने डाइट भी एक तरह से फॉलो किया। तो वीरू वाज ऑलवेज देयर, सो आई कुड एक्चुअली अंडरस्टैंड जो मेरी मैसेजिंग चाहिए थी उसकी। आई जस्ट हैड माय ओन वे ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू हिम। क्या बात है। दिस इज सच अ फैंटास्टिक लेसन इन लीडरशिप कि हर बंदा अलग होता है, हर टीम में मेंबर अलग होता है। तो आपके पास वन स्टॉप रूल नहीं हो सकता। यू हैव टू अंडरस्टैंड द पर्सन एट एन इमोशनल लेवल एंड देन गिव हिम अ सॉल्यूशन। और इस बेसिस पे वो जो एक क्वेश्चन जो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि इट वाज अ सिग्निफिकेंट मोमेंट इन द 2011 वर्ल्ड कप। जैसे आपने कहा राहुल द्रविड़ के साथ आप एक रैशनल अंडरस्टैंडिंग है, वीरू के साथ आपको उसको मैनिपुलेट करना है उसका दिमाग समझ के। बट युवराज सिंह ने जो कहा, और मुझे वो आपके आई वांट यू टू एक्सप्लेन टू एवरीबडी कि युवराज सिंह ने कहा कि अगर पाजी मेरे से मेरा बेस्ट नहीं निकालते थे सचिन पाजी, तो शायद मैं वर्ल्ड कप का चैंपियन नहीं होता था। तो क्या कॉन्वर्सेशन आपके साथ हुई उस मेंटल स्टेट में युवराज सिंह के साथ कि यू गॉट द बेस्ट आउट ऑफ हिम? I remember we were in Bangladesh और इनॉग्रल सेरेमनी चालू थी, सभी कैप्टन्स को बुलाया हुआ था और हम होटल में थे। तो मैंने यूवी को थोड़ा ऑब्जर्व किया हुआ था। मुझे लग रहा था कि यूवी की कैंप वगैरह में सब जगह एनर्जी थोड़ी कम थी। कुछ प्रैक्टिस मैचेस भी खेले थे, वहां पे जो एक स्प्रिंग होनी चाहिए प्लेयर के पैरों में, दैट स्प्रिंग वाज मिसिंग। तो मैंने यूवी को कहा कि यूवी हम दोनों इकट्ठा खाना खा रहे हैं, सिर्फ दोनों ही बैठेंगे और किसी को नहीं बुलाएंगे। तो नॉर्मली होता है कि 5-6 लोग 30 प्लेयर्स आते हैं, फिर हम बैठ के इकट्ठा खाना खाते हैं, नॉर्मल जो भी गपशप करते हैं वो करते हैं, कभी कभी सीरियस टॉक्स भी होते हैं। मगर जो एक वन ऑन वन जो टॉक होना चाहिए वो नहीं हो पाता। एंड आई वांटेड टू डू दैट बिकॉज आई वांटेड टू लेट हिम नो कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन द टीम। ये एक सॉलिड प्लेयर था हमारी टीम का और उसका फॉर्म में रहना, उससे कॉन्ट्रीब्यूशन निकलवाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैंने यूवी को यही कहा कि यूवी मैं देखता हूँ कि थोड़ी एनर्जी कम है, कुछ प्रॉब्लम है। तो ऑब्वियसली उसके बाद बहुत सारे चैलेंजेस आए उसके लाइफ में।